Gujarat, Sri Acharya Devat ji, Chief Minister of Gujarat, Sri Bhupendra Patel ji, Union Minister for Commerce and Industry, Sri Piyush Goyal ji, Union Minister of State for Commerce and Industry, Sri Jiten Prasad ji, Director Dr. Ashok Mandal ji, distinguished guests, faculty members and students, ladies and gentlemen. Namaskar. I am glad to be here today with you. I find the atmosphere here quite pleasing and inspiring. Ahmedabad is home to some of the most distinctive educational initiatives in post-independence India, and the National Institute of Design in one of them. NID indeed holds a place of its own, not only as the pioneer of design of education and practice in the country, but also for its unique way of teaching. Its faculty and students have consistently raised the bar of excellence in this field. I am sure the students completing their studies today will continue this great tradition. Design can mean different things to different people, but in essence, it is a very simple concept. An example of design thinking is the invention of the wheel, and it changed the world forever. Design can also produce something that is visually pleasing. For example, the invitation for the Republic Day at home ceremony last month was designed by the NID. It featured visual elements associated with South India and was very much appreciated by everyone. The concept of design has many aspects, and the NID has excelled in all of them, with emphasis on design as a service for the betterment of society. There are many problems all around us, and many of them request not great resources but design tweaks. Creative thinking can lead to solutions that can improve the ease of living, especially for the underprivileged communities. To put it differently, design is often a less noticed but crucial factor in social and economic development of our country. Traditionally, in our country, design has been interwoven in the fabric of everyday life in all communities. Some of the historical facts are well known, and I am happy to note that the NID has done an exemplary work in studying the lesser known design traditions. I am sure there is much more to be done in this regard. We need to study and document knowledge systems, including design systems of more traditional communities. Their cultural practices, I believe, hold the key to some of the challenges that confront the world in the 21st century. Therefore, revitalizing the historical solutions drawn from India's diverse cultures and leveraging them for innovation will benefit not only the nation but will also contribute to global progress. Design forms a bridge between tradition and modernity. It brings together time-honored knowledge, crafts, and artistic practices which are often rooted in rural and tribal communities on one hand, and contemporary technologies and design principles on the other. This fusion fosters innovation and also preserves our rich cultural heritage. This is particularly important in rural and tribal settings, where traditional skills need to be enhanced, adapted, and integrated with modern needs to create sustainable livelihoods. NID's outreach programs exemplify this by sharing expertise with traditional and social sectors across India. This fosters innovation and exploration of new market potential for crafts,
through collaborations with artisans. Our designers have demonstrated the power of design to create positive and social change. They are making impactful design interventions in the social sector, bringing improvements in crucial areas such as healthcare, housing, and sanitation. They are focusing their skills and expertise on addressing real-world problems which often affect marginalized communities. This way, they are also helping bridge the urban-rural divide. After all, the benefits of designers' expertise must reach all segments of society, promoting equitable and balanced development. The NID has been at the forefront of all such praiseworthy efforts. Moreover, it has applied the same creative thinking to the problem of design education and created a model of its own. In interdisciplinary, holistic approach to the problem solving offers valuable lessons for other educational institutions. Indeed, integrating design pedagogy into the education system can make learning more meaningful too. Those of you who are completing the studies today are fortunate to have been taught in this great institution by eminent teachers and practitioners. On this important day in your life, I would like to say a few words to you. This place has taught you skills and nurtured your talents. As you step out in the world and begin your career now, you will surely remember that this exceptional education was made possible by our society, and you will be happy whenever you get an opportunity to pay back to the society, no matter how and where. In design, as I understand it, there is form and there is function. Making beautiful things is a creative work and brings joy as well as monetary rewards. But never forget the functional aspects. There are problems that await your solutions. Your creative spark can change the lives of people. Do spend some time in villages and, if possible, in remote areas. It will inspire new ways of looking at the world, and if you can help people there with your learning, so much the better. Think of the humble chakra, and then think of Gandhiji, who rediscovered it and sought out people to enhance its design. His sole motive was to free millions of people from poverty. His notion of design had a beauty of its own. My congratulations to the students as well as the faculty, the administrators, the directors, and the governing council on today's occasion. My best wishes to you all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, मेरे सहयोगी और मित्र जितेंद्र प्रसाद जी, एनआईडी अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक मंडल जी, यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी के सम्मान्य सदस्य, सभी प्राउड पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों के ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए उपस्थित हुए हैं, और आज के उत्सव मूर्ति हमारे 430 ग्रेजुएट्स जो आज ग्रेजुएट करके देश और दुनिया में अपना परचम फैलाने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अवश्य अपने काम से अपने इंस्टीट्यूट को, अपने परिवार को और देश को गौरवान्वित करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।
अभी अभी कार्यक्रम में आने के पहले हम सब ने एक बहुत सुंदर एग्जीबिशन देखी। यहाँ का इतिहास कैसे बनाया गया, कैसे कल्पना की गई। अभी पहली बार मुझे पता चला कि जिन्होंने चंडीगढ़ की कल्पना की थी, जिस आर्किटेक्ट ने चंडीगढ़ बनाया, उन्होंने ले कॉर्ब्यूजियर ने इसका भी डिज़ाइन बनाया है। साराभाई परिवार ने इसका नेतृत्व किया। मैं समझता हूँ इतना उज्जवल इतिहास है इस संस्था का। पहले माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी यहाँ पे आके गए हैं। एक प्रकार से ये एक ज्वलंत उदाहरण है भारत की उभरती हुई शक्ति का। और आगे आने वाले दिनों में जब हम अमृत काल में तेज गति से विकसित भारत की ओर प्रगति करते हैं, तो मैं समझता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार दोहराते हैं, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एंड डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसको सच्चाई करने में आपका काम होगा। आपके वर्षों से मेहनत, पढ़ाई में लगन, क्रिएटिविटी और उत्साह का आज एक प्रकार से समापन भी हो रहा है जब आप ग्रेजुएट करते हैं, और एक प्रकार से नए जीवन में प्रवेश करने का भी आनंद आप सबको होगा। आप अपनी डिग्री लेके जब बाहर जाएंगे तो आप अपने देश का और मैं समझता हूँ आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जीवन का शिल्पकार के रूप में यहाँ से प्रवेश करेंगे। You will be the architects of your destiny, and I am certain that as designers, as innovators, probably problem solvers, as one of my colleagues just mentioned, you will be working for the world. Today, the world is not just waiting for you, the world needs you. आपकी आवश्यकता है पूरी दुनिया में, दुनिया प्रतीक्षा कर रही है आपके लिए। डिजाइन भारत के लिए कुछ नई चीज नहीं है। हम अगर अपने अध्यात्म में देखें, इतिहास में देखें, तो हमारे डीएनए में ही डिजाइन कूट कूट के भरा हुआ है। आप राणकपुर के मंदिर देखने चले जाइए, आप दक्षिण के सुंदर मंदिरों को देखिए, जिस प्रकार से अजंता के म्यूरल्स देश और दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बृहदेश्वर का मंदिर हो या बनारसी साड़ियों की वीविंग हो, चाहे वो कलमकारी आर्ट हो, मैं समझता हूं डिजाइन सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं है, डिजाइन एक प्रकार से इनोवेशन भी है और उसका इम्पैक्ट, उसका जो प्रभाव देश की विरासत में रहा है और आगे चल के देश की विकास यात्रा में बनेगा, वो एक अद्भुत मेल है। और आप सब वो सेतु बनेंगे विरासत और विकास के बीच में। और उसका सबसे सुंदर उदाहरण माननीय महामहिम जी आज की ये पोशाक है। हमने वो पुराने अंग्रेज कॉलोनियल पोशाक को अब आस्ते आस्ते सभी इंस्टीट्यूशन से समाप्त करना है। एनआईडी हो, पहले एनआईएफटी फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी हो, एक के बाद एक आईआईटीज, कई आईआईटीज, आईआईएम्स भी इस नए स्वरूप में ग्रेजुएशन की पोशाक को ग्रहण कर रहे हैं। और अधिकांश जो देश भर में इंस्टीट्यूट्स में बदलाव हुआ है, उसकी डिजाइनिंग या तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने बनाकर ये एक नया दिशा ग्रेजुएशन और दीक्षांत सेरेमनीज को दिया है। मैं समझता हूँ इतना सुंदर दृश्य दिखता है जब भारत की पोशाक में भारत के बच्चे अब तैयार हो रहे हैं भारत की सेवा करने के लिए। मित्रों,
आज स्पेस की दुनिया हो या सेमीकंडक्टर्स की दुनिया, चंद्रयान में भारत की डिजाइन की जो विशेषताएं हैं वो हम सब ने देखी. अल्टीमेटली द स्पेस मिशन इज ऑल अबाउट डिजाइन. It's all about the capabilities that are designed at the initial stage, which ultimately lead to success. The Mars mission, the whole mission carried out in such a frugal cost, probably 450 odd crore rupees. That was less than the cost of a Hollywood movie. और हाल में ही विदेश के कुछ मंत्रियों के साथ जब चर्चा हो रही थी, वो लगातार इस विषय में रुचि रख रहे थे कि भारत अपने स्पेस मिशन इतने कम खर्चे में कैसे कर सकता है. और ये जो विशेषता है, इसका मूल अगर देखने जाए तो वो मूल आप सबकी काबिलियत में है, हमारे डिजाइन इंजीनियर्स की काबिलियत में है, हमारे स्पेस के से जुड़े हुए लोगों की काबिलियत में है. और आजकल तो अधिकांश स्पेस के मिशन डायरेक्टर्स और मिशन डिजाइनर्स हमारी बहनें होती हैं, महिलाएं होती हैं जो स्पेस की डिजाइनिंग करती हैं. तो मुझे यहाँ भी इतनी बड़ी संख्या में बहनों को देख के शायद दिखता है कि लड़कों से ज्यादा बहनें हैं यहाँ पे. लगभग ऐसा दृश्य तो यही दिख रहा है. और आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार से हम आपके जादू, आपकी इंजेन्युइटी और अलग अलग विषयों में देखेंगे, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, चाहे गेमिंग टेक्नोलॉजीज हो, खिलौने बनाने हो, टेक्सटाइल की डिजाइनिंग हो, सेरामिक्स की हमारी अभी अभी बहन को पुरस्कृत किया गया, महिंद्रा की गाड़ी अभी अभी हमने देखी. और लगभग 1.5 महीने पहले ही पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ये दोनों गाड़ियां जो आप ही के एलुमनाई प्रसाद जी ने बनाई हैं, ये दोनों गाड़ियां पार्लियामेंट में लाके महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ ने मुझे दिखाई थी. मुझे उसमें एक छोटा राउंड भी करवाया. वास्तव में आज दुनिया को टक्कर देने की काबिलियत भारत में है. बहुत बहुत बधाई हो प्रसाद जी. प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं, and I quote for the benefit of everybody in English, it is time for new dreams, new resolutions and continuous accomplishments. मुझे लगता है अब हम सब ने डिजाइन के संभावनाओं को और बड़े रूप में और बड़े स्वरूप में कैसे हम नए नए शोध, नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज बड़े स्केल पे, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों तक हमारा काम पहुंचे. इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये हमारे देश का मिशन है. ये हम सबका संकल्प भी है और ये भारत की ताकत भी है. हमारे 140 करोड़ भाई बहन कैसे लाभ ले सके, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, नए नए तरीके हो काम करने के, उसमें हम सब ने अपना योगदान देना है. और मेरी बात मानिए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, अंत में ह्यूमन माइंड, आप सबकी सोच, आप सबकी काबिलियत बड़े से बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 100% ज्यादा होगी. कभी भी भारत के लोग कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी से ज्यादा आगे पहुंच पाएंगे. ये मेरा अटूट विश्वास है. और मुझे पक्का पता है कि आप जो काम करोगे वो विश्व स्तरीय होगा और वो विश्व में नए प्रकार से लोगों को दिशा देगा. भारत की दशा भी बदलेगा. भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को विकास के साथ जोड़ेगा. और आगे आने वाले दिनों में आपका जो ये प्रवास है, आपकी जो ये प्रवाह है, एनआईडी से निकलकर जब आप दुनिया में बाहर जाएंगे, देश में नए नए काम करेंगे, तो आप सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सेवा भाव से दुनिया को
नए मोड़ पे लेके जाने के लिए आप अवश्य काम करेंगे, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिजिटल क्षेत्र हो। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे एनआईडी के स्टूडेंट्स नई ऊंचाइयों तक जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। द फ्यूचर इज नॉट समथिंग you wait for. It's something you design, you craft. You have to create your own future. कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपकी काबिलियत की सीमा क्या है। आप सबकी जो क्षमताएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरी पत्नी का नाम सीमा है तो कहीं इसकी गलतफहमी ना हो जाए, लेकिन आपकी काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। और मुझे आप सबको देख के, आप सबको रूबरू मिल के पूरा विश्वास है कि एनआईडी का नाम आपके माध्यम से रोशन होगा। सो फ्रेंड्स, गो आउट इनटू द रियल वर्ल्ड, क्रिएट, डिसरप्ट एंड लीव अ मार्क of NID, of each one of your capabilities in the real world. My best wishes, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। धन्यवाद श्री पीयूष गोयल जी। Shri Bhupendra Bhai Patel is the 18th Chief Minister of Gujarat. With extensive administrative experience, Shri Patel has held key positions including Chairman of the Standing Committee of Ahmedabad Municipal Corporation and Chairman of Ahmedabad Urban Development Authority. His leadership in urban development and governance has shaped policies for the state's progress. In his tenure as a Chief Minister, Shri Patel is committed to enhancing governance and public welfare in Gujarat. मैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री भूपेंद्र पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में हमारे बीच मंच पर उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, श्री जतिन प्रसाद जी, इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक मंडल जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी प्राध्यापकगण एवं सभी अधिकारीगण, विद्यार्थी मित्र, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में सम्माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल ही हमने इस महानगर के 614वां स्थापना दिन मनाया है। ये नगर एक समय में भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था और आज विश्व का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और देश का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट इस आधुनिक नगरी की नई पहचान बनी है। इस महानगर को विश्व फलक पर ले जाने का भगीरथ कार्य विश्व नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस नगर की एक तासीर है कि हर नागरिक में सृजनात्मक एवं नई शोध करने की अनूठी क्षमता है। यहाँ के छात्र लोकल फॉर वोकल के सूत्र को चरितार्थ करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यह समय है स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का, हमें उसको अनुसरना है। आज के समय में
डिमांड और जॉब पैटर्न बदल रहे हैं, तब हमें अपने कुशलता को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। उद्योग, संशोधन एवं कौशल्य विकास संस्था के लिए समय के साथ सुसंगत रहना और बदलते वैश्विक प्रवाह को समझना अति आवश्यक है। कृषि, उद्योग, ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो या बिजनेस, आज सभी क्षेत्र के विकास में डिजाइनिंग की अहम भूमिका है। एनआईडी के 5 दशकों से अनेक प्रतिष्ठित डिजाइनर्स की राष्ट्र को भेंट दी है। एनआईडी इस तरह राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र की प्रगति एवं विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान देते आ रहा है। कुछ ऐसे ही और युवा डिजाइनर्स यहां से डिग्री प्राप्त करके विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने दीक्षित हो रहे हैं। आज एनआईडी के कुछ युवा डिजाइनर्स को बेस्ट प्रैक्टिस के लिए शांता केशवम प्राइज दिया गया है। डिजाइनिंग क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए एनआईडी के पूर्व विद्यार्थी को प्राइड ऑफ एनआईडी अवार्ड से सम्मानीय राष्ट्रपति जी के कर्म कमलों से सम्मानित किया गया है। उन सभी को मैं बधाई देता हूं। यह संस्थान आधुनिक समय की समस्याओं को इनोवेटिव सॉल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के स्टार स्तंभ को युवा शक्ति को विशेष महत्व दिया है। प्रधानमंत्री जी को भारत के युवाओं की स्किल, विल और जिल पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे के दम पर उन्होंने 15 अगस्त के अपने संबोधन में लाल किले की प्राचीर से देश के युवाओं, इनोवेटर्स और डिजाइनर्स को डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दिया था। यह केवल एक स्लोगन नहीं, बल्कि देश में एक नई इकोनॉमी के निर्माण का मार्ग भी है। आज के युग में क्लाइमेट चेंज से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक की व्यापक चुनौतियों का सामना करने में भी डिजाइनिंग क्षेत्र इनोवेटिव आइडियाज के साथ हम भूमिका निभा सकते हैं। आज दुनिया जीरो इफेक्ट डिजाइन का स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी जीरो इफेक्ट को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर समेत हमारे पास डिजाइनिंग की भी भव्य कला विरासत है। डिजाइनिंग की हमारी इस विरासत को आधुनिक समय के साथ जोड़कर पुनः विकसित करने का एक बड़ा अवसर आप सभी के पास है। आप सभी वो भाग्यशाली युवा हैं जिन्हें 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देने का सौभाग्य मिलेगा। आपके समक्ष भविष्य के अनेक अवसर हैं। हमें विश्व को स्मार्ट एंड स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशन प्रदान करना है। हम सबको मिलकर भारत को विश्व में मानव शक्ति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनना है। सीखने की, सिखाने की और आगे बढ़ने रहने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। जीवन के हर मुकाम पे आप सब सबल बने, यही शुभकामना के साथ मैं अपना उद्बोधन पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। Shri Acharya Devvrat is the Honorable Governor of Gujarat. He has spearheaded key initiatives like zero budget natural farming, Beti Bachao, Beti Padhao, drug de-addiction and Swachhata Abhiyan, ensuring large-scale public participation. His contributions have earned him numerous honors, including the Bharat Jyoti Award, American Medal of Honor 2022, Himmat Karsh National Unity Award 2006 and Akshay Urja Samman 2011, along with multiple recognitions for social reform, education and disaster relief. Committed to good governance and public welfare, he continues to drive impactful change. अब हम गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को आमंत्रित करते हैं।
सौम्यता, नम्रता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, जिनके बहुत सार गर्भित विचारों को हमने सभी ने श्रवण किया, ऐसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, भारत के राज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आदरणीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर अशोक मोंडल जी, शासी परिषद के सम्मानित सदस्यगण, प्राध्यापकगण, विशिष्ट अतिथिगण, अभिभावकगण और बहुत ही सम्मानित आज डिग्री प्राप्त करने वाले बेटे और बेटियों, अभी मेरे से पूर्व आपने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में बहुत विस्तृत जानकारियां प्राप्त की हैं। निस्संदेह पिछले लगभग 50 वर्षों से इस संस्थान ने भारत में डिजाइन के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आज जिन बेटे बेटियों ने अपनी मेहनत से, लगन से, निष्ठा से, परिश्रम से डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन सब को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और उनके पूज्य माता पिता को भी बहुत बहुत इस बात के लिए कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को बाल्यावस्था से ही परिश्रम करा करके इस ऐसे संस्थान में भेजा जो भारत का डिजाइन नए ढंग से करने में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी बनेंगे। भाइयों और बहनों, जैसा माननीय मंत्री जी ने हमारे बीच में कहा, भारत डिजाइन के क्षेत्र में कोई नया देश नहीं है। यूरोप के लोग जब वल्कल वस्त्र पहनते थे, उस समय भारत के ढाका का मलमल माचिस की डिब्बी में बंद करने की क्षमता यहाँ के लोगों में थी। यहाँ के कुटीर उद्योग विश्व में विख्यात थे, जहाँ का माल भारत के व्यापारी समुद्री जहाजों में भरकर सारी दुनिया में सप्लाई किया करते थे। यहाँ की शिल्प कला अद्भुत थी। यहाँ का तो गांव का एक एक कारीगर चर्मकार जूते में डिजाइन करता था, जुलाहा वस्त्र में डिजाइन करता था, कुम्भकार मिट्टी के बर्तनों में डिजाइन बनाता था। यह सब डिजाइन यहाँ के लोगों ने परमात्मा की कृति उस अध्यात्म से लिया था। वेदों में लिखा है, यतो वर्तानि पशपशे इंद्रस्य युज्य सखा विष्णु कर्माणि पश्यत, कि भगवान की इस कृति को देखो, भगवान से बड़ा डिजाइनर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ और उस पेड़ के एक एक पत्ते को देखिए, उसमें भगवान ने क्या डिजाइन उसका किया, डिजाइन उसमें डाला है। आप किसी फूल को ले लीजिए और किसी ऐसे बगीचे में चले जाइए जहां विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के फूल हैं। आप भगवान के डिजाइन ऐसे हाथ भी नहीं लगाया। हमने तो बहुत मेहनत की थी। हमारे रंग तो कई बार धुलाई करते समय निकल भी जाते हैं, लेकिन भगवान ने जिस फूल में, एक ही फूल में 4-5 तरह के रंग डाल दिए, वर्षा होती है वो धुलते भी नहीं है। और केवल वही काम नहीं करते, वो पर्यावरण को भी शुद्ध करने का काम करते हैं। तो उसका डिजाइन एक एक चीज, समुद्र को देखें, नदियों को देखें, पहाड़ों को देखें, आप वनस्पति को देखें, ये चहचहाने वाले पक्षियों को देखें, एक एक पक्षी के ऊपर ऐसा डिजाइन डाला है
कि हम जो कुछ सीख पाते हैं वो उसी से ले पाते हैं। और इस कृति को देखते हुए महाकवि कालिदास ने कहा था, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, कि ये मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, वो नवीनता को पसंद करता। एक चीज से हम जीवन में ऊब जाते हैं, एक ही तरह का वस्त्र पहने तो दुखी हो जाते हैं, एक ही तरह का भोजन खाएं तो अच्छा लगना बंद हो जाता है। आदमी हर चीज नई नई बदलने की इच्छा रखता, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो मैं समझता हूं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मानव की इस चीज को समझते हुए कि मानव निराश न हो, हताश न हो, उदास न हो, सरस बना रहे, नीरस जीवन में नीरसता न आए, इसके लिए डिजाइन जो है वो व्यक्ति को आज के इस भागदौड़ के युग में भी नई चेतना, नई स्फूर्ति देने का काम करता है। तो निस्संदेह आज दुनिया जिस नई टेक्नोलॉजी के साथ विकसित हो रही है और नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, उसमें आपके इस संस्थान का योगदान आने वाले समाज को एक सरस बनाने का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। अंत में अपनी बात समाप्त करते समय का भाव, आज दीक्षांत है। हमारी इन बेटियों ने बहुत अच्छे उपनिषदों के मंत्रों का पाठ किया है। प्राचीन भारत में आज का जो दीक्षांत होता था, ये अध्यापकगण, छात्र वर्ग और अभिभावक तीनों का आपस में बैठकर के जीवन का छात्र के लिए अंतिम उपदेश होता था। और इस देश का गुरु अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा रखता था? आप पढ़ लिख गए, आपने अपने क्षेत्र में डिग्रियां प्राप्त कर ली, अब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको अंतिम उपदेश आज गुरु देता था, सत्यवाद, धर्मचर, स्वाध्यायनमा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि। ये जीवन का संदेश देता था और वो यही बात कहता था, मेरे बेटे और बेटियों, इन संस्थाओं में पढ़ लिख करके योग्य बन करके आप कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं। दो प्रकार के लोग दुनिया में सदा रहे हैं, आज भी हैं और सदा रहेंगे। एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं, एक सबका कल्याण चाहते हैं, एक कुटिलता से भरे होते हैं, एक सबके सुख दुख में हिस्सा बनते हैं, एक लोगों का सुख छीनने का काम करते हैं। तो जीवन में तीन वस्तु सबसे कीमती है आदमी के पास में। ये पशु पक्षी जीव जंतुओं के पास में तीनों चीज नहीं होती। इस भोगवाद की दुनिया में तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं। पहली है मनुष्य के पास विद्या, दूसरा है उसका धन और तीसरा है उसका शारीरिक बल। यदि अच्छे लोगों के पास ये तीन चीजें जाती हैं तो वो क्या करता है, और ये तीनों चीजें राक्षस दुर्बुद्धि लोगों पे जाए तो क्या करता है। और ये सब पर संभव है, सब पर संभव है। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आज सबसे बड़ा धन आपको इस संस्थान ने दिया विद्या का। तो भले लोगों के पास विद्या आए तो क्या करते हैं, और दुर्बुद्धि करते तो क्या करते हैं। दुर्बुद्धि लोगों पर विद्या आती तो क्या करेगा, विद्या विवाद आए, अपनी उस मेधा का प्रयोग लोगों को लड़ाने में लगाएगा, संगठनों को तोड़ने में लगाएगा, आतंकवाद में लगाएगा,
और अपनी बुद्धि को लोगों को दुखी करने में लगाएगा। और ऐसे व्यक्ति के पास धन आता तो क्या करेगा? मदाए, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, नशे करेगा, समाज को बिगाड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को दुख देगा। और शक्ति ऐसे लोगों पाए तो क्या करेंगे? परिपीड़न आए, वो निर्बलों को सताएगा, कमजोरों को और दबाने का काम करेगा। चाहे उस पर कोई सी भी शक्ति आए, वो अपने उस दुर्बुद्धिपन से ये जो बहुत बड़ी उसकी ताकत बनने वाली थी, वो उसके दुखों का कारण बन जाती है। और यही चीज जब भले लोगों के पास आती है तो क्या करते हैं? विद्या आएगी तो क्या करेगा? ज्ञान आए, अपने विद्या के ज्ञान को बांटेगा। यही तो बात आज कही गई है। आज आपको गुरु यही अंतिम उपदेश देता, स्वाध्याय न प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो तुम्हें पढ़ाया लिखा गया है उस विद्या का प्रचार विश्व कल्याण के लिए करो, प्राणी मात्र के करो। वो ज्ञान सबके सुख का कारण बने, सबको प्रेरित और सबको सदा आनंद का कारण बने। और जिस व्यक्ति भले आदमी के पास धन आएगा तो क्या करेगा? दान आए, दीनहीन की दान दे करके सेवा करेगा, विद्याहीन को पढ़ाने का काम करेगा, किसी विधवा के दुख दर्द में उसका धन काम आएगा, किसी समाज के उत्थान में वो धन को लगाएगा। यह है अच्छे लोगों की पहचान। और जिस धर्मात्मा के पास शक्ति होगी वो निर्बल की ताकत बनेगा, वो कमजोर व्यक्तियों का संबल बनेगा। भाई और बहनों और बेटे बेटियों, इस धरती पर रावण के पास में कम विद्या नहीं थी, दुर्योधन कम पढ़ा लिखा नहीं था, ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, और सद्दाम हुसैन भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था। लेकिन उनकी कुबुद्धि ने इन सारी शक्तियों के होते विनाश की ओर ले गए। और जो भले लोग होते हैं, दुनिया ही उनके बारे में निर्णय कर देता है। मेरे आपके घरों में जिन लोगों के चित्र हमने लगाए हैं वो उनके नहीं लगाए जिन्होंने अपने सुख के लिए औरों का खून बहाया है। हमने अपनी घर की दीवारों पर उन लोगों को जगह दी है, उनके चित्र लगाए हैं जिन्होंने लोगों के दुख दूर करने के लिए स्वयं का बलिदान दिया है। ऐसा मानव, ऐसा इंसान ऐसे समय पर उपदेश गुरु देता था, बेटे कुछ भी बनना। आज की भाषा में आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डिजाइनर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन इंसान बने रहना, मानव बने रहना। ऐसा इंसान जो दूसरे के हृदय को, अपने स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके, जो दूसरे के दुख को अपनी आंखों से बहा सके, जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक कर सके। यह जीवन दर्शन केवल और केवल भारतीय अध्यात्मवाद का है, भारतीय ऋषियों मनीषियों का था, हमारे इन गुरु लोगों का था, जो अंतिम समय ये उपदेश देकर भावी भारत के निर्माण के लिए अपनी युवा पीढ़ी को, राष्ट्र को समर्पित करते थे। ऐसे अवसर पर मैं यहाँ के गुरुजन को, डायरेक्टर महोदय को, उनकी पूरी टीम को और उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने परिश्रम मेहनत के द्वारा इस राष्ट्र की सेवा देने का आज निश्चय किया है, सबके प्रति बहुत मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी। Thank you, esteemed dignitaries, for your inspiring and thought-provoking words. Your guidance and wisdom have not only enriched today's convocation ceremony, but will also serve as a beacon for our graduating students as they step into the next chapter of their lives. देवियों और सज्जनों, हमारे बीच श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति हमारे लिए एक अत्यंत गौरव की बात है। श्रीमती मुर्मू जी ने
25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पूर्व उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल के रूप में सेवा दी। एक विधायक के रूप में उनकी अद्वितीय सेवाओं के लिए उन्हें 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास